So today's we are going to conducting fourth lecture of pericyclic reaction. That is very important lecture to understand Dewars approach. Earlier, we have seen about very important theory that is nothing but you can say document correlation diagram, and second one is FMO approach. Now after this, then again very important approach is Dewars approach. So in case of Dewars approach, see what you can do. Here you can see confirm the selection rule. हमने पहले कंफर्म किया था, इसी तरह से आपको सिलेक्शन रूल जो है उसको कंफर्म करना है. And how you are going to confirm it? So very simple method is there to confirm it. See here, according to Dewars perturbation molecular orbital approach, you can have two different rules. You have to follow two rules. One is Huckel rule and second one is Mobius rule. Huckel rule is nothing but, according to Huckel rules, foreign system is anti-aromatic and the 6N system is aromatic. According to Mobius rule is the opposite to Huckel rule. According to Mobius rule, foreign system is aromatic and 6N system is anti-aromatic. So this rule we are going to follow it. Now, see in these rules, what happens? You can predict whether on-rotatory motion is thermally allowed or dis-rotatory motion is thermally allowed. Same things that we have already predicted in correlation diagram theory, movement correlation diagram theory. If anything is there which is aromatic, is always thermally allowed. Remember, if system is found to be aromatic according to any of these rules, it is aromatic, and if system is found to be aromatic, then it is thermally allowed, and if it is found to be anti-aromatic, then it is photochemically allowed. Any of these rules you can follow. Okay, so you know that see this butadiene is, it is a foreign system. So according to Huckel rule, it is anti-aromatic. According to Huckel rule. According to Mobius rule, it is aromatic. This system is also belongs to this one. See this here, it's a 2 pi electron and 2 sigma electron can take part in the reaction. So this is also example of foreign system. Similar way, see 6N system is there, like hexatriene, or you are getting product cyclohexadiene. This is according to, this is a 6N system, 4 pi electron and 2 sigma electron. So this is a 6N system. Here 6 pi electron is there. According to Huckel rule, it is aromatic. According to Mobius rule, it is anti-aromatic in this way. Okay, so first we are going to checking for foreign system. Foreign system, we are going to checking it for foreign system. So what happens in case of the foreign system? See foreign thermally. This is a foreign system. Foreign thermally, which type of motion, or you can see first use the on-rotatory motion and find out which source is there. We know that selection rule is already we are knowing. Foreign thermally on-rotatory allowed and foreign photochemically dis-rotatory allowed. This selection rule we are knowing very well, but now we will check it. Suppose this is a system is foreign, what happens? So you can have a say this product.
This is your current system. This is plus minus plus minus. તમારે psi 1 લેવલ જ લેવાનું કોઈ પણ સિસ્ટમ ચેક કરતા હો. You can always take psi 1 level whenever you are checking any of the system. Okay, you always take psi 1 level. You are checking it for any of the system. Now you tell me, see, what happens if you give the conrotatory motion? If you give the conrotatory motion, then this minus part goes inside. Here, which part goes inside? This side. Sir, minus. This side. Sir, plus sign, sir. So see here plus sign goes inside and here minus sign goes inside. आपको psi 1 level ही लेना है. यहाँ suppose plus sign आ जाएगा अंदर की side, यहाँ minus. So see these two are having opposite sign. Look at here. These two are opposite and therefore number of node is opposite है तो one node count करेंगे, same है तो zero node. अगर यहाँ पे एक नोड है तो नोड इज नंबर ऑफ नोड इज ओड एंड नंबर ऑफ नोड ओड है, सो कौन सा रूल लगेगा? उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, यहाँ एक चीज मेंशन करना बाकी था कि व्हेनेवर नोड इज इवन देन यू कैन फॉलो अपर रूल, व्हेनेवर नोड इज ओड देन यू कैन फॉलो मोबियस रूल. नंबर ऑफ नोड आपको देखना है, सी नंबर ऑफ नोड्स आर इवन देन यू कैन फॉलो व्हिच रूल? अपर रूल. And if it is odd, then you can follow Mobius rule. Now यहाँ पे एक ही है तो odd है, तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे? अकल रूल. अकल रूल. अकल रूल है, देखो नंबर ऑफ नोड odd है तो यहाँ पे सीधे आपको जो बताया उसमें look at here, number of nodes are odd, तो अकल रूल होगा या Mobius rule? Mobius. Mobius rule follow करेंगे. Now what happens according to Mobius rule? Foreign system is according to Mobius rule. Aromatic. Yes, foreign system is aromatic. उससे अपोजिट हो जाएगा कैसे? और ये एरोमेटिक है तो कौन सा एनर्जी सोर्स आएगा? अगर सिस्टम एरोमेटिक है तो कौन सा एनर्जी सोर्स आएगा? थर्मल. थर्मल. इसलिए यहाँ पे आप लिखते हो सिर्फ फॉरेन conrotatory foreign system is thermal alloy. So this is again selection rule. Now what happens if you give this rotatory motion? Sir, photochemical. तो क्या होगा? ये क्लॉकवाइज रहेगा, इसको से आप क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे देखें और ये एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ प्लस साइन अंदर आएगी, क्लॉकवाइज है तो नीचे की ओर, और ये भी ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगा. तो यहाँ पे भी सिर्फ प्लस साइन अंदर आएगी दोनों साइड. यहाँ पे भी ये माइनस वाला पार्ट बाहर की ओर चला जाएगा, प्लस वाला अंदर की ओर आएगा. सो सी इफ यू गिव this rotatory motion means rotation is given in an anti-clockwise direction. So what happens? In case of this rotatory motion, one bone is rotated in a clockwise direction and second bone is in an anti-clockwise direction. One bone is in a clockwise direction and another one is in a anti-clockwise direction. Just a minute. So here see one bone you can rotate in a clockwise and another one is in anti-clockwise. So both the plus part comes towards cavity inside and a minus part goes outside. This is in a clockwise, this is in anti-clockwise.
So as a result, what happens? Plus minus. Here also plus minus. How many number of nodes are there? Number of nodes are 0. So it is even. So which rule is applicable? Huckle. So according to our rule, foreign system is एंटी एरोमेटिक सर यू एज न्यू लगेगा मतलब फोटोकेमिकल डायरेक्शन aromatic. एंटी एरोमेटिक है तो फोटोकेमिकल हो गया या थर्मल? If the system is anti aromatic, then it is photochemical or thermal. What is energy source? So photochemical. Photochemical yellow. So see, therefore, foreign system is thermally conrotatory and photochemically disrotatory yellow. This is the selection rule. Now, what's about 6N system? We will check it for 6N system. So 6N system is concerned. This is your 6N system. Then you can take here psi 1. This is plus, minus, plus, minus. Now what happens if you give first conrotatory motion? This bone is in a clockwise and this bone is in a anti-clockwise direction. This is in a clockwise. So this is also in a clockwise direction. So here plus part go inside, here minus part goes inside. So what happens? Here plus part comes here and here minus part. So how many nodes are there? Number of nodes here, sir? Sir, 1. 1. So Oh. number of nodes are odd. So which rule is applicable? Mobius. Obvious rule. And Mobius. according to obvious rule, 6N system is And एंटी एरोमेटिक anti-aromatic rule. Therefore, if it is anti-aromatic, then it is फोटोकेमिकल It is a photochemical yellow. Similarly, if you want to check it for disrotatory motion, what happens? Now, see, for disrotatory motion, one body is rotated in a clockwise direction, another body is rotated in a anti-clockwise direction. So we will get it for disrotatory motion. Suppose this body is in a clockwise direction and this body is in a anti-clockwise direction. So plus part or minus part comes inside. Here plus part comes inside. So this is anti-clockwise. So this is not a clockwise, but this is anti-clockwise. So plus part coincidence with each other. One is in a clockwise direction, one is in anti-clockwise. So how many number of nodes are there? Number of nodes are 0. So it is even. So which rule is applicable? Which rule is applicable? Huckle rule. Huckle rule. According to Huckle rule, 6N system is Aromatic. aromatic. So if it is aromatic, then the reaction is Thermally allowed. thermally.
Frictional system is aromatic and therefore the reaction is aromatic. So what is selection rule? So the conclusion is, see if you having foreign system, if you look at for thermal source, then it is which rotation? One rotated yellow. And photochemically it is rotated yellow. What's about section system? Section system thermally Disrotatory. rotated yellow. And photochemically Con. rotated yellow. So see you have to follow this rule. आपको पेपर में से इतना ही देंगे, पेपर में सपोज इतना प्रोवाइड करेंगे आपको, ऐसे सपोज कंपाउंड दे दिया है, यहाँ पे शायद थर्मल दिया होगा या तो फोटोकेमिकल, वो बताएंगे नहीं एग्जैक्टली सोर्सेस गिवन, आपको खुद को ही डिसाइड करना है। चलो इसका मीनिंग क्या है, थर्मल दे दिया है, कौन सा रोटेशन आप लेंगे, आपको थर्मल सोर्स दे दिया है, सी एनर्जी सोर्स बिकम थर्मल, आप कौन सा रोटेशन लेंगे? सर डिसरोटेशन। यहाँ आप ऐसे लेंगे, सी एक जो है ना ऐसे, और थर्मली डिसरोटेटरी आपको पता है सेक्शन सिस्टम है, तो आप ऐसे करेंगे, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में एरो हाइड्रोजन पे आ रहे हैं, दैट मींस tail part is there in the methyl group, so both the methyl group are comes in a same side, in the same direction, अब दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड रहेंगे, तो दिस प्रोडक्ट, इसके मिरर इमेज लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट हैज सी इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, but suppose photochemical source is there, then you can go for conrotated motion. So in this case what happens? Two methyl group are in other plane. Okay, so methyl group are in a different plane, so definitely there is no mirror plane, so you can have a C2 enantiomeric form. These two are enantiomeric. Similar सी आपके पास सपोज जैसे फॉरेन सेक्शन सिस्टम में, इसका अगर आपको नेम लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, सी फर्स्ट डबल बॉन्ड जो है ऊपर वाला डबल बॉन्ड वो सी से, ये सी से, ओके, ये जो है वो सिसोइड ज्योमेट्री, इसी यहाँ मिडिल वाला जो डबल बॉन्ड है ना वो सिसोइड है, रिमेंबर दिस इज अ सिसोइड ज्योमेट्री, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये सी से, ये भी ये ट्रांस है, लास्ट वाला ये ट्रांस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिस ट्रांस, अगर यहाँ थर्मल मोशन थर्मल सोर्स प्रोवाइड करते हैं आपको, तो यू नो दैट दिस इज थर्मली डिसरोटेटरी लोड, एंड अगर डिसरोटेटरी मोशन करते हो तो ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो दोनों मिथाइल ग्रुप अगेन कम्स इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर दोनों मिथाइल अपोजिट आएगा, you can either write down this one or you can have it this one. अब आगे वाला है तो नेम कैसे करेंगे, नेमिंग यहाँ पे सीस, अगर इसका आपको नेम देना है तो कैसे देंगे, फर्स्ट डबल बॉन्ड ट्रांस है या सीस ऊपर वाला, Sir, trans. ट्रांस, देन सीस, देन ट्रांस, यहाँ से नंबर दो, एट कार्बन है, कार्बन नंबर 2 4 6 पे डबल बॉन्ड है, सो 2 4 6, 8 कार्बन है, सो ऑक्टा प्राइम। इसी तरह चलो इसका भी नेम देना है तो आप ऐसे दे सकते हो, सिस ट्रांस 2 4 6 ऑक्टा
इसके केस में क्या होगा वो बताओ चलो। इसका नेम बताओ पहले। Sys. सी से सर। फाइन, इसके प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे आप थर्मल मोशन करोगे तो? दोनों दोनों बीस रोटेटेड ही होगा। एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों सेम साइड रहेगा। है ना? माइक बंद। सुशी डिस्टोर्टेटरी एंड दोनों डिस्टोर्टेड कैसे आएगा, सी दोनों सेम साइड आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ कौन सी प्रोडक्ट थी, यहाँ पे भी दोनों सेम साइड थे, अगर दोनों ट्रांस थे तो यहाँ पे भी दोनों से से तो भी दोनों सेम साइड आ रहे हैं। तो अगर आप इसका अपोजिट रिएक्शन करते हैं रिंग ओपनिंग, तो कौन सी प्रोडक्ट मिलती है? ये मिलेगी प्रोडक्ट बी मिलेगी या प्रोडक्ट ए? रिवर्सिबल टाइप रिएक्शन, अगर आप इसका रिंग ओपनिंग करते हो, रिंग ओपनिंग ऐसे, तो दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक सिस वाली और दोनों ट्रांस वाली। तो आपको कौन सी प्रोडक्ट लिखना है उस टाइम? कौन सी लिखना है? सिस सर। नहीं, सिस ट्रांस नहीं, ट्रांस होगी या ये वाली। देखो यहाँ पे दोनों सेम साइड है, तो ये प्रोडक्ट मिल रही है आपको ट्रांस दोनों को। तो सेम साइड है, तो इसमें से दोनों सिस वाले ग्रुप आ रहे हैं, तो इसमें मैंने ये प्रोडक्ट क्यों लिखी रिंग ओपनिंग करके? ये नहीं लिखी, ये क्यों लिखा? जब आप रिंग ओपनिंग करते हो तो यही प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, ऐसा क्यों? ये क्यों नहीं? तो इसमें क्या होगा, कौन सी प्रोडक्ट स्टेबल है? दिस इज मोर स्टेबल। Trans में ये hindrance दोनों कम हो। दूर है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा सी। अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड है, एक सिस है और एक ट्रांस, एक ट्रांस है और एक सिस, तो आपको पता है ऐसे इसका रिएक्शन करते हो तो थर्मली, तो यहाँ पे आपको ऐसी प्रोडक्ट होती है। अगर आप इसका रिंग ओपनिंग करते हो, इसका रिंग ओपनिंग, दो पॉसिबिलिटीज है आपके पास। पहला वाला ग्रुप सिस रहेगा, दूसरा ट्रांस, दोनों सेम ही है, इसलिए आप एक ही प्रोडक्ट लिखना है, ये प्रोडक्ट मिलेगी, यही प्रोडक्ट आपको मिलेगी। ओके, यही मिलेगी। आई थिंक राइट डाउन दिस वन और दिस वन, बोथ आर सेम। बट आगे के केस में दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है, इसलिए आपने वो जो मेजर प्रोडक्ट थी वो लिखी थी। So it's a reversible type reaction. Now, for example, we can put into account that is the foreign system. What happens? We take a foreign system. So you can take a foreign system, then what happens? It is a foreign system. ये दोनों सी से या ट्रांस? Sys. चलो आप थर्मल सोर्स यूज करते हो, थर्मल रिंग ओपनिंग करते हैं, तो फॉरेन थर्मली
कौन रोटेटरी? कौन रोटेटरी? ये क्लॉकवाइज ये अंदर की साइड जाएगा, ये क्लॉकवाइज ये कहाँ जाएगा? अंदर की साइड या बाहर की साइड मिथाइल ग्रुप? बाहर। वैसे एक में बाहर की साइड जा रहा है, एक में अंदर की साइड, ऐसे ये बाहर की साइड लिखो और इसको अंदर की साइड। तो यहाँ इधर यू कैन राइट ऑन दिस। कोई ऐसा है कि इनको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देना है दोनों बॉन्ड को, तो ऐसे देंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगी। दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, ये दोनों प्रोडक्ट सेम ही है। बट सी व्हाट हैपेंस इफ यू गो फॉर दिस रोटेटरी मोशन रिंग ओपनिंग, तो इस केस में एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? ये सपोज क्लॉकवाइज है तो ये अंदर की साइड जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी अंदर की साइड है। तो दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे आएंगे? सर अंदर की तरफ ऐसे बेंड। दोनों मिथाइल ग्रुप से ऐसे अंदर की तरफ आएगा। दूसरी एक और पॉसिबिलिटी है, दोनों बाहर जाएंगे। दोनों को एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को बाहर जाएगा। कौन से प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट रहेगी? सर ट्रांस वाली। ट्रांस वाला। ट्रांस प्रोडक्ट बिकम मेजर प्रोडक्ट। अभी आप इसका अपोजिट करो, चलो इसका आप रिंग क्लोजिंग करते हो हमको ऐसे फोटोकेमिकल इशू। मोशन कौन सा होगा? इस रोटेटरी ऐसे, एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं या अपोजिट? सेम साइड सर। इसका फोटोकेमिकली रिंग क्लोजिंग करते हो तो फोटोकेमिकली फॉरेन सिस्टम इज दिस रोटेटरी एरो, एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में आएंगे तो कितनी प्रोडक्ट मिलेगी? दो प्रोडक्ट। कौन कौन सी दो प्रोडक्ट? ये आपकी साइड रहेगा ग्रुप और ये पीछे की साइड। दूसरी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें तो दो प्रोडक्ट मिलेगी। But one thing, see, so just you can see, keep in mind that one thing. Whenever see if you carry out reaction for such type of prime, so in this case what happens? A middle वाला double bond कैसे है? C से या trans? ट्रांस सर। So see trans है so there is no reaction. रिएक्शन नहीं होगा। मिडिल वाला डबल बॉन्ड जो है ये ट्रांस है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वो कंपल्सरी ऐसे C होना चाहिए। मिडिल वाला जो है वो C रहना चाहिए तभी रिएक्शन हो। अदरवाइज दोनों कार्बन जो है जहाँ पे बॉन्ड बनता है वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो इसके लिए कौन सा सोर्स लेके? 6 एंड थर्मली इस रोटेटेड रिएक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो मिडिल वाला है वो कंपल्सरी आपने जैसे बताया वैसे वो कंपल्सरी शेष रहना चाहिए। एग्जाम में आपको सीट नहीं देगी, यहाँ थर्मल और यहाँ फोटोकेमिकल। आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है, यहाँ थर्मल यहाँ फोटोकेमिकल। चलो पहले वाले केस में बताओ कौन सा लोकेशन लेंगे? फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में नॉन रोटेटेड, तो दोनों मिथाइल ग्रुप कैसे आएंगे? ये भी कौन रोटेटेड है, ये भी कौन रोटेटेड है, तो दोनों मिथाइल ग्रुप
जम से आएगी या अपोजिट? ट्रांस से ऑपोजिट चला जाएगा। वैसे प्रोडक्ट मिलेगा। दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। चलो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मोशन ऑटो करने के लिए तो दोनों निकल दो। यार कौन सी सेम साइड। ऐसा कौन तो नीचे वाले केस में थर्मल है तो कौन रोटेट करे? फोटो करने के लिए तो बीस वाले एक क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज दोनों मिसल जुड़े यहाँ पे सेम सेट आएंगे ऐसे। तो दोनों अलग-अलग प्रोडक्ट नहीं है, दोनों सेम ही प्रोडक्ट। ओके, what happens when you create this rotatory motion? One is clockwise, another is anti-clockwise. So in this case, both the metal group comes in opposite direction. See, one more example is that see, this system is asked many times. Look at here. दो तीन बार एग्जाम में पूछे गए एग्जाम्पल। इसमें से प्रोडक्ट ऐसे दिखती है। सवाल ये है कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट आपको दे सकते हैं। पेपर में कुछ भी नहीं दिया है तो आपको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट है वो कंसीडर करना है। एक प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। मेजर प्रोडक्ट होती है ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट ही है। कुछ नहीं दिया है तो आपको ये लिखना है। अभी देखो यहाँ पे कौन सा रोटेशन हम लेके तो ये प्रोडक्ट मिलेगी, ये सवाल ये है। यहाँ जो दो हाइड्रोजन है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इस कार्बन कार्बनिक 1 और 4 के बीच में। चाहे रिएक्शन ऐसे
6N सिस्टम यूज होता है या तो 4N कुछ भी हो। सी तो एक चीज तो पक्की है कि यहाँ पे शीश प्रोडक्ट है, और शीश प्रोडक्ट तभी मिलेगी जब आप रोटेशन कैसे देंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तभी दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में आएंगे। ओके, यू कैन गिव व्हिच रोटेशन, डिसरोटेटरी। तभी दोनों हाइड्रोजन से सेम साइड आएंगे। और अगर आप कौन रोटेटरी मोशन देंगे तो दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड आएंगे। तो एक चीज कंफर्म है कि दोनों हाइड्रोजन अपोजिट है, मींस आपने कौन रोटेटरी मोशन दिया है। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, मींस आपने कौन सा रोटेशन दिया है, डिसरोटेटरी। अभी आपको ये पता लगना है कि डिसरोटेटरी फॉरेन सिस्टम क्या है, सपोज 4 पाई इलेक्ट्रॉन यूज होते तो भी प्रोडक्ट यही मिलेगी सी ऐसे, आपको पता नहीं है, आप सिस्टम ऐसे ड्रॉ करो। आप सबको जैसे सिस्टम ड्रॉ करो, ये भी एक बाई एनीबॉडी सपोज मैं यूज, दोनों सेम ही ऐसी स्ट्रक्चर, ए बी स्ट्रक्चर ये है, ए बी स्ट्रक्चर ये है, रेजोनेंस में ये यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो भी ये प्रोडक्ट बनेगी। तो दोनों पॉसिबिलिटीज ऐसी, पता नहीं लगेगा कि 6N है या, क्योंकि यहाँ लेबल हाइड्रोजन किया है, इसलिए हाइड्रोजन है सब जगह, इसलिए मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसलिए आपको पता नहीं कि ये कौन सी सिस्टम है। तो दोनों पॉसिबल सिस्टम है। तो इस केस में आपको ऐसा करना है, ऐसी डिसरोटेटरी मोशन है तो फॉरेन जो सिस्टम है, अगर फॉरेन सिस्टम होगी तो वो फोटोकेमिकल होगी, तभी वो डिसरोटेटरी होगा। अगर 6N सिस्टम है तो थर्मल होगी, तभी वो डिसरोटेटरी मोशन होगा, तभी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये प्रोडक्ट कब मिलेगी, कौन रोटेटरी मोशन के लिए। चलो फॉरेन सिस्टम अगर है तो कौन सा एनर्जी सोर्स यूज करेंगे, ये ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोडक्ट चाहिए। फॉरेन सिस्टम की बात करो, कौन रोटेटरी मोशन देंगे तभी आपको ट्रांसफर प्रोडक्ट मिलेगी। कौन रोटेटरी के लिए आपको एच नहीं करोगे, फॉरेन सिलेक्शन रूल क्या है, सब थर्मली। थर्मली, फॉरेन थर्मली कौन रोटेटरी, तो यहाँ थर्मली लेना है। अगर 6N लेके तो डिसरोटेटरी हो जाएगा। ओके सर। नहीं, 6N भी फोटोकेमिकल लेके वो भी कौन रोटेटरी चाहिए, इसी रोटेशन पे कौन रोटेटरी चाहिए, तभी ये ट्रांसफर मिलेगा। ओ अच्छा, हाँ मैंने, ओके सर। पेपर में ऐसे एग्जाम्पल पूछते हैं काफी टाइप, सी पेपर में इतना ही पूछते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सिस्टम दे दिया आपको, आपको खुद को ये अचीव नहीं करना, स्ट्रक्चर तो कुछ भी हो सकता है, पेपर में से दे दिया है सपोज। इसके लिए आपको ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, थर्मली, फॉरेन, कौन रोटेटरी, बी थर्मली, फॉरेन, इस रोटेटरी, सी फोटोकेमिकली, 6N रोटेटरी, थर्मली, 6N रोटेटरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों सेम साइड है, मींस रोटेशन कौन सा होगा, डेस डिसरोटेटरी होगा, दोनों सेम साइड है, रोटेशन इज डिसरोटेटरी। तो आपको पता है कि ये दोनों में से एक है। अब थर्मली तो फॉरेन कौन रोटेटरी पॉसिबल है, यहाँ मैंने डिसरोटेटरी लिखा, वो गलत है। इस ऑप्शन बी ऑप्शन अगर करेक्ट होता तो यहाँ थर्मल की जगह हम फोटोकेमिकल सोर्स वहां लिखते हैं। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट यू कैन डू, ये पॉसिबल है, सी 6N थर्मली डिसरोटेटरी, वो सिलेक्शन रूल में है। ओके, 6N फोटोकेमिकल कौन रोटेटरी है, बट 6N थर्मली डिसरोटेटरी पॉसिबल है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सब आपको सब टेबल प्रोवाइड करते हैं यहाँ इसी तरह। यहाँ सपोज मिथाइल ग्रुप दे देते हैं लेबल करके, तो आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा मिथाइल ग्रुप वाला कार्बन कैसे दिया है। अब यहाँ थर्मल करेंगे या तो फोटोकेमिकल कुछ भी है, चलो यहाँ पे आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि नहीं यहाँ मिथाइल ग्रुप है, दैट मीन्स
आपके पास मिथाइल ग्रुप है, उसका मीनिंग क्या है? अभी वो आप दोनों पॉसिबिलिटी नहीं सोच सकते। मिथाइल ग्रुप के हिसाब से बॉन्ड पोजीशन देखोगे तो पता चलेगा रिएक्शन कहाँ पे हुआ। ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सपोज आपको ऑप्शन दिया है, so now you can see definitely say that how many electron are used in this reaction? कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं अभी? 4 पाई यूज हुआ है या 6 पाई? अभी आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है। आप देखो कौन कौन से बॉन्ड चेंज हुए हैं। 4 पाई सर। 4 पाई यूज होगा क्योंकि यहाँ पे देखो मिथाइल, दोनों मिथाइल के बीच में सिंगल बॉन्ड था, वहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया। सो ये एज इट इज रहेगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, ये कार्बन लेवल वाला फिक्स है, ओके, इसलिए यहाँ पता लग जाएगा। सो डेफिनेटली सी इट्स अ 4n सिस्टम एंड प्रोडक्ट आपको 6 मिल रही है, तो 4n डिसरोटेटेड होगा तभी 6 प्रोडक्ट मिलेगी ना। 6 प्रोडक्ट कब मिलेगी? रोटेशन डिसरोटेटेड है तो चलो यहाँ डिसरोटेटेड मोशन है तभी आपको 6 प्रोडक्ट मिलेगी। तो कौन सा एनर्जी सोर्स आएगा इसमें? So photochemical. इसे लिखो। कितने पाई यूज हुए हैं? नाउ यू टेल मी। So 6 pi. 6 पाई क्योंकि मिथाइल की पोजीशन एज इट इज है, डबल को ये 6 पाई यूज हुए हैं। तो 6 पाई है तो 6 प्रोडक्ट मिल रही है, तो कौन सा सोर्स लगे? So thermal. सर कौन? तो डिसरोटेटेड नहीं, कौन में तो ट्रांस मिलती है ना, ये प्रोडक्ट सी से वो तो पहले ही बता दिया यहाँ पे। आप देखो डिसरोटेटेड में सी से, कौन रोटेटेड में ट्रांस है। यस यस यस, सॉरी सर। डिसरोटेटेड मिशन ओके, सेक्शन डिसरोटेटरी Thermal. इसी तरह से आपको एक सोर्स से कुछ भी पूछ सकते हैं और कुछ भी नहीं दिया है, उसको प्रोडक्ट सीस ट्रांस मेंशन नहीं किया है, तो आपको ऑलवेज सीस प्रोडक्ट ही सोचना है। सीस प्रोडक्ट इज ए मेजर प्रोडक्ट। अगर आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है सो यू ऑलवेज गो फॉर सीस प्रोडक्ट। दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। Now we go for which reaction? After electrocyclic, the next one is cycloaddition reaction. What you can do in cycloaddition? See, there are two types of cycloaddition. So before going to check cycloaddition, first we will look at the mode of addition. See, there are types of mode of addition. दो टाइप के मोड ऑफ एडिशन पॉसिबल है यहाँ पे। कौन से दो टाइप के मोड ऑफ एडिशन पॉसिबल है? ऐसे तो 4 टाइप के मोड ऑफ एडिशन है, सुप्रा इंट्रा और सब काउंट करें तो पहले हम दो मेन टाइप का एडिशन है, सुप्रा एंड इंट्रा, उसको देखते हैं। सो सुप्रा एडिशन किसको बोलते हैं? सुप्रा सुप्रा
तो सुप्रा 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 इंट्रा एंट्रा एंट्रा ये सारे जो है 3 टाइप्स के डिफरेंट एडिशन मोड है। इस केस में कौन सा एडिशन होगा ये चीज देखना है। कब सुप्रा सुप्रा होगा, कब सुप्रा एंट्रा होगा, तो दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ एडिशन। एडिशन में भी सुप्रा 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 एंट्रा, इसमें भी एंट्रा सुप्रा, एंड लास्ट वन इज एंट्रा एंट्रा। दोनों जो मोड ऑफ एडिशन है दोनों साइड से वो एंट्रा एंट्रा फॉर्म में भी हो सकता है। तो दिस इज अगेन वेरी important aspect, check mode of addition. In this case, suppose ऐसे return करना है। प्लस माइनस यहाँ पे भी प्लस माइनस, what you can do, see upper lobe is positive, lower lobe is negative. Okay, ये दोनों अलग अलग पाई सिस्टम है। जिस एटम पे बॉन्ड यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वहाँ दोनों जो सिस्टम है वो अलग अलग है। यहाँ पे थोड़ी देर बॉन्ड इज फॉर्म है। तो ये दोनों जो सिस्टम है, see here both the systems are, you can say, same system. This is a pi, this is also a pi level. Okay, so whenever any two system is there, so how you can add two group into that system, that is very very important. I'll tell you how to do the addition. आप कुछ नहीं सपोज आप ये दोनों क्वेश्चन को ओवरलैपिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप ये दोनों को ओवरलैपिंग करते हैं। फिर आपके पास इसको ऐसे करते हैं। ये आपका 5 स्टार है फॉर एग्जांपल, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 5 लेवल। अभी देखो मैं सपोज ये प्लस प्लस के साथ यहाँ ऐसे ज्वाइन करता हूँ, या माइनस माइनस के साथ ऐसे ज्वाइन करता हूँ। What you call this type of addition? वैसे तो ये जो है it is not allowed because it is symmetry forbidden. माइनस प्लस ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस प्लस है, so it is symmetry forbidden. प्लस के साथ प्लस एडिट हो रहा है, माइनस के साथ माइनस है, तो ये सिमेट्री अलाउड है 2+2 एडिशन के लिए। ये आपको पता है पाई स्टार है, एक पाई है। दो सिस्टम में एक जो है पाई है वो लोवेस्ट हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी HOM, तो ये जो है वो आपकी LUMO रहेगी। अब जैसे ऐसे 2+2 एडिशन करते हो
तो उसमें एक जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होती है, दूसरी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड होती है। वन इज HOMO, अनदर इज LGO। अगर आप ऐसे एडिशन करते हो तो ये कौन सा एडिशन हुआ? रिलोड एडिशन की बात करो। ये प्लस के साथ प्लस एडिट हुआ है, माइनस के साथ माइनस नीचे, तो इसको बोलेंगे ये सी दोनों ऊपर वाले लोग यहाँ पे एडिशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इसको सुप्रा बोलेंगे। यहाँ एक ऊपर एक नीचे वाला लोग है तो इसको इंट्रा बोलेंगे। तो दिस एडिशन इज कॉल्ड सुप्रा इंट्रा, इट इज कॉल्ड सुप्रा इंट्रा एडिशन। दिस इज ये पॉसिबिलिटी है जिसमें यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस अब देखो आप ये दोनों को ऐड कर रहे हो, प्लस प्लस माइनस माइनस के साथ। अब यहाँ दोनों नीचे वाले लोग है सी, ये दोनों जो है नीचे के जो लोग है उसको यूज कर रहे हैं। ये दोनों सेम साइड के लोग है तो इसको क्या बोलेंगे? सुप्रा बोलेंगे या इंट्रा? सुप्रा सर। या इसको सुप्रा बोलेंगे। इनको ये भी ये भी सुप्रा। तो एडिशन कौन सा हो जाएगा? सुप्रा 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 रहेगा। उसी तरह सपोज आप जैसे इसको लेते हैं प्लस माइनस अभी देखो ये देखो प्लस प्लस ये माइनस माइनस एडिट हो जाए, तो इसका कौन सा मोड ऑफ एडिशन बोलेंगे? ऊपर वाला है वो सुप्रा है, एंट्रा एंट्रा सर। वाला एंट्रा है, नीचे वाला भी ये आपको दीजिए तो नीचे वाला भी एंट्रा रहेगा ना। यस सर। तो मैं ये दिस इज कॉल्ड एंट्रा एंट्रा एडिशन। इसी तरह से हम दिल-साल्ट रिएक्शन की बात करते हैं। दिल-साल्ट रिएक्शन इज 4 + 2 साइक्लो एडिशन। So you are getting cyclohexane। इस रिएक्शन में क्या होगा? जैसे ये 4 जो है इसके HOMO यूज करेंगे, इनके LUMO। तो इनके आप HOMO यूज करोगे तो ऐसे आएगा HOMO। एक्चुअली psi1 है psi2 है, तो लास्ट दोनों ऐसे आएगा, माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा। ये psi2 है, तो इनके LUMO ऐसे आएगी प्लस माइनस माइनस प्लस। अब इधर प्लस के साथ प्लस ज्वाइन करो, माइनस के साथ माइनस ज्वाइन करो। कौन सा एडिशन है ये? phi4 phi2। phi4 के साथ सुप्रा है या एंट्रा? तो सुप्रा ये HOMO है और ये LUMO है, तो ये सुप्रा और नीचे भी सुप्रा है, तो सुप्रा सुप्रा हो जाएगा। इसलिए दिल-साल्ट रिएक्शन इज ऑलवेज फॉर phi सुप्रा phi2 सुप्रा है। So tomorrow we will discuss reactions taking 4-pi system and 2-pi electrode system. Okay. Very much. Now we stop here. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you.